عید الاضحیٰ کا دن تھا، گھر میں خوشیاں تھیں، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میری ڈاکٹر بیوی نے کہا اپنے ان پڑھ ابا کو اوپر والی چھت کے کمرے میں بند کر دو، انہیں تو ڈھنگ سے بولنا بھی نہیں آتا، میرے مہمان آ رہے ہیں، بدنامی ہو جائے گی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ سر جھکا لیا اور وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ میرے ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیوی نے انہیں اوپر کمرے میں بند کر دیا، وہ خاموشی سے اپنا قرآن مجید لے کر اوپر چلے گئے۔ نیچے پارٹی چلتی رہی، کہے قیمتی کھانے اور مہمانوں کی چمک دمک، لیکن اوپر ایک باپ بھوکا بیٹھا تھا۔ شام کو جب میں انہیں بلانے گیا تو دیکھا ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کے ہاتھ میں کھلی قرآن مجید تھی اور ایک پرانا کاغذ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ کھولا، پڑھا تو میری روح کانپ گئی۔ اس میں لکھا تھا غلام حسین نے اپنی بیٹی کی پڑھائی کے لیے اپنی بھینس سکینہ کو بیچ دی تھی۔ انہی پیسوں سے بیٹے احسن کا شہر کی بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ہوا، جہاں اس کا خواب تھا کہ دل لگا کر پڑھے اور ڈاکٹر بنے۔ ابا میں آپ کا سر فخر سے اونچا کر دوں گا، احسن نے کہا تھا۔ غلام حسین نے بس ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بس بیٹا دل لگا کر پڑھنا، میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے۔ گاؤں میں اب سکینہ کی جگہ خالی تھی، آنگن سنسان لگتا تھا۔ جب صبح دودھ نہ آتا تو غلام حسین کی بیوی ایک لمبی سانس بھرتی، لیکن کچھ کہتی نہیں تھی۔ غلام حسین نے ایک دن پوچھا، کیوں چپ ہو جاتی ہو؟ بیوی نے آہستہ سے کہا، کیا کہوں، جو تم نے کیا وہ صرف ماں باپ ہی کر سکتے ہیں، بیٹے کے خواب بہت مہنگے ثابت ہوئے۔ غلام حسین ہنس دیا، لیکن اس ہنسی میں گہرا درد چھپا ہوا تھا۔ دن گزرتے گئے، کھیت سے لوٹتے ہوئے اب غلام حسین کے چہرے پر سکون نہیں ہوتا تھا۔ بیٹے کی یونیورسٹی کی تصویریں، دوستوں کے ساتھ سیلفیاں، کبھی کبھار آنے والی کال، یہ سب اس قربانی کی قیمت تھی جو اب غلام حسین کو چبھنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے بیوی سے کہا، جانتی ہو کل کھیت میں دھوپ نکلی تو لگا جیسے سکینہ کھڑی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے تو صرف ایک جانور بیچا تھا، لیکن دل بھی ساتھ چلا گیا۔ بیوی نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، دل بھی آخر جان سے جڑا ہوتا ہے، یوں ہی تھوڑی نکلتا ہے۔ ادھر احسن اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے خطاب میں اس نے کہا، میرا نام احسن اور میرے والد ایک کسان ہیں جنہوں نے اپنے خواب قربان کیے تاکہ میں اپنے خواب پورے کر سکوں۔ پورا حال تالیاں بجا اٹھا، لیکن احسن جانتا تھا کہ ان تالیوں کے پیچھے ایک کھیت کی خاموش جدائی چھپی تھی، ایک ماں کی چپ اور ایک باپ کی آنکھوں میں اترتا ہوا درد۔ غلام حسین اکثر احسن کی کتاب میں اس کی پرانی یونیفارم، بستہ اور بچپن میں بنائی گئی سکینہ بھینس کی تصویر دیکھتا رہتا، جس پر لکھا تھا، میری سکینہ میرا دوست۔ وقت گزرتا گیا مگر غلام حسین کا دل اب وہ دل نہیں رہا تھا۔ اسے سمجھ آنے لگا تھا کہ یہ تو صرف آغاز ہے، قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب تک تو صرف ایک جانور گیا تھا، آگے کیا کچھ دینا پڑے گا، یہ سوال اس کی روح میں بیٹھ چکا تھا۔ ایک رات اس کی بیوی اٹھی تو دیکھا غلام حسین چولہے کے پاس بیٹھا ہے، ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑا ہوا تھا اور بار بار دیکھ رہا تھا جیسے کوئی رقم اسے اندر سے توڑ رہی ہو۔ یہ احسن کے اگلے سیمسٹر کی فیس کا بل تھا جو لاکھوں میں تھی۔ پچھلی بار جو بھینس بیچی تھی وہ تو بس آغاز تھا، اب خواب پورے وجود کے ساتھ دروازے پر کھڑا تھا اور اس کی بھوک بڑھتی جا رہی تھی۔ بیوی نے پوچھا، کیا ہوا، پھر فیس بڑھا دی؟ غلام حسین نے صرف گردن جھکا کر سر ہلایا۔ اب کیا بیچو گے؟ بیوی نے پریشانی سے کہا۔ غلام حسین نے کچھ نہیں بولا، بس الماری کی چابی نکالی اور زمین کے کاغذات نکال لیے۔ بیوی چیخ پڑی، نہیں غلام حسین، یہ مت کرو، یہ ہمارا گھر ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ غلام حسین نے ضبط بھری آواز میں کہا، اگر یہ چھت میرے بیٹے کے خوابوں کے نیچے آ جائے تو میں خوشی سے اسے رہن رکھوں گا، بس وہ ڈاکٹر بن جائے۔ بیوی خاموش ہو گئی، جیسے کسی نے اس کی سانس روک دی ہو۔ اسی گھر میں اس نے اپنی جوانی گزاری تھی، بچوں کو پالا تھا، دیواروں پر بچوں کے ہاتھوں کی چھاپ تھی، مگر اب وہ گھر بھی ایک خواب کی بھینٹ چڑھ رہا تھا۔ کچھ دن بعد غلام حسین بینک میں بیٹھا تھا، سامنے زمین کے کاغذات، ماتھے پر پسینہ، دل پر قرض کا بوجھ۔ قرض غلام ہوا، گھر رہن رکھ دیا گیا، احسن کی فیس جمع ہوئی اور اگلا سال شروع ہوا۔ احسن پرجوش تھا، ابا میں تحقیق میں شامل ہو رہا ہوں، ڈاکٹر اقبال مجھے پہچاننے لگے ہیں، میرا نام اب یونیورسٹی کے بورڈ پر آئے گا۔ غلام حسین نے مسکرا کر سب سنا، مگر اندر ہی اندر ہر اینٹ کی قیمت محسوس کی۔ مہینے گزرتے گئے، فیس پھر بڑھی، اب باری تھی پاس والی زمین کی جو غلام حسین نے اپنے بڑھاپے کے لیے بچا کر رکھی تھی، اب وہ بھی بکنے لگی۔ بیوی نے ایک دن کہا، کبھی سوچا ہے اگر وہ ڈاکٹر نہ بنا تو ہم کہاں جائیں گے؟
गुलाम हुसैन ने फौरन बात काट दी, वो ज़रूर डॉक्टर बनेगा, मुझे ऊपर वाले और अपने बेटे की मेहनत पर भरोसा है। एहसन अब यूनिवर्सिटी में मशहूर हो गया था, दोस्त बने, तस्वीरें वायरल होने लगी और वो एक नए माहौल में खुद को बड़ा समझने लगा। एक दिन उसने फ़ोन किया, अब्बा एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस है, लाहौर जाना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन 5,000 है और सफ़र का खर्च अलग। गुलाम हुसैन ने सर झुकाकर हाँ कर दी, हालांकि जेब में सिर्फ 3,000 रुपये थे। वो दोबारा बाजार गया, पुराने बर्तन बेचे, बकरी का बच्चा बेचा और किसी तरह बेटे के लिए पैसे बेच दिए। गांव में लोग बातें करने लगे कि गुलाम हुसैन सब कुछ बेच रहा है, बेटे के ख्वाबों के पीछे पागल हो गया है। कुछ दुख भरे अंदाज में कहते, अल्लाह करे ऐसे वाकई डॉक्टर बने, वरना गुलाम हुसैन का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बीवी अब अक्सर खामोश रहने लगी थी, उसके चेहरे पर हमेशा फिक्र छाई रहती। एक शाम गुलाम हुसैन बैठा हुआ था, हाथ में एक पुराना लोटा था जिस पर एहसन ने बचपन में अपना नाम और दिल का निशान बनाया था। उसे वो दिन याद आया जब एहसन ने पहली बार कहा था, अब्बा मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, सबकी मदद करूंगा और आपको बड़ी गाड़ी लेकर दूंगा। गुलाम हुसैन की आंखें भर आई, उसने आसमान की तरफ देख कर कहा, या अल्लाह मेरी कुर्बानी रायगा न जाए। अब वो वक्त भी आ गया था जब आखिरी खेत भी बेचना था। इस बार गुलाम हुसैन की आवाज़ भी लर्ज रही थी, कागजात पर दस्तखत करते वक्त उसकी हाथ कांप रहे थे। बीवी कमरे में आई और बोली, अब तो वक्त आ गया है कि गुलाम हुसैन अगर कोई छत बचेगी तो बस आसमान की होगी। मगर गुलाम हुसैन ने सिर्फ इतना कहा, ये आखिरी सेमेस्टर है, बस एक बार ये भी पूरा हो जाए। जब एहसन को पता चला कि अब्बा ने आखिरी ज़मीन भी बेच दी है तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए सख्त तारी हो गया, मगर फिर उसने खुद को संभाला और कहा, अब्बा मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, मेरी आखिरी इम्तहान की तैयारी मुकम्मल है। गुलाम हुसैन ने उसे दुआओं के साथ रुखसत किया, मगर दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया था, जैसे ख्वाब पूरे होने की बजाय किसी अंधेरे में खो रहे हों। गर्मियों की शिद्दत ही इम्तहान का आखिरी दिन था। एहसन के हाथ पसीने से भीगे हुए थे, दिल में अनोखी घबराहट थी। इम्तहान हाल के दरवाजे पर खड़े होकर उसने आखिरी बार सबक दोहराया, माँ की दुआओं को याद किया और इम्तहान हाल में दाखिल हो गया। उसे पता था कि ये सिर्फ एक इम्तहान नहीं बल्कि एक सफ़र का फैसला है, एक ऐसा सफ़र जो गुलाम हुसैन ने अपने ख्वाबों की बुनियाद पर शुरू किया था। मगर किस्मत का कलम कभी कभी इन ख्वाबों के रंग फीके कर देता है। इम्तहान के बाद दिन रात हफ्ते जैसे रुक से गए। गुलाम हुसैन हर दूसरे दिन एहसन को फ़ोन करता, बेटा इम्तहान कैसा हुआ, और हर बार एहसन आहिस्ता आवाज़ में जवाब देता, अब्बा अल्लाह बेहतर करेगा। गुलाम हुसैन मुसलसल कुछ अजीब सा महसूस करने लगा था। वो अब ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारने लगा। बीवी अब पहले जैसी खामोश न रही, हर वक्त फिक्र और परेशानी में डूबी रहती। एक दिन उसने कहा, अगर अल्लाह ने समर ना दिया तो। गुलाम हुसैन ने सिर्फ एक जुमला कहा, जो भी होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा। नतीजे का दिन आ गया। एहसन ने अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर पर नतीजा देखा, मगर इसमें अपना नाम ना पाया। उसका दिल बैठ गया, जैसे किसी ने उसकी रूह ही निकाल ली हो। दोस्तों ने दिलासा दिया, कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वो जानता था कि जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया था वही ख्वाब आज मिट्टी में दफन हो गया। वो दिन बहुत भारी था। एहसन ने गुलाम हुसैन को फ़ोन किया, मगर अल्फाज गले में अटक गए। सिर्फ इतना कह पाया, अब्बा मैं पास नहीं हो सका। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। फिर गुलाम हुसैन की टूटी हुई आवाज़ आई, ठीक है बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। उसकी आवाज़ में वो हार थी जो कोई मुजाहिद आखिरी जंग से पहले महसूस करता है। उसने फ़ोन बंद किया और कई लम्हे यूं ही दर्द के बोझ तले बैठा रहा। परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे, सूरज ढल रहा था, लेकिन गुलाम हुसैन का चेहरा जैसे वक्त से बाहर था, बेरंग और बेजान। बीवी ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? गुलाम हुसैन ने आस्था से कहा, एहसन फेल होगा। बीवी बैठ गई, जैसे किसी ने उसके पाँव तले ज़मीन खींच ली हो। तो अब हम क्या करेंगे? गुलाम हुसैन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं, शायद वो कोई नौकरी ढूंढ ले। कुछ दिन बाद एहसन का फ़ोन आया, अब्बा एक अस्पताल में छोटी सी नौकरी मिल गई है, बतौर मददगार, तनख्वाह कम है लेकिन कुछ ना होने से बेहतर है। गुलाम हुसैन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, अच्छी बात है बेटा, कोई काम छोटा नहीं होता। मगर इसके दिल ने खामोशी से कहा, जिस कीमत पर मैंने ये ख्वाब खरीदा उसका नतीजा ये नहीं होना चाहिए था। गुलाम हुसैन और उसकी बीवी ने फैसला किया कि वो पुराने जख्म पीछे छोड़ देंगे। अब वहाँ कुछ नहीं बचा था, ना ज़मीन, ना घर, ना रोज़गार, बस यादें थी जो हर दीवार पर उदासी की तरह चिपकी हुई थी। कुछ पुराने संदूक, बासी कपड़े और टूटे ख्वाब, यही उनका सरमाया था। उन्होंने पुराने घर का ताला बंद किया और एक बार पलटकर इस दरवाजे को देखा जिसके पीछे उनकी पूरी ज़िंदगी गुजरी थी। शहर में एहसन ने एक छोटे से किराए के मकान का इंतजाम किया था। वो वालिदैन को लेने आया। रास्ते भर खामोशी छाई रही। माँ ने एक बार खिड़की से बाहर देखा और कहा, इन 2 हफ्तों में मेरा सारा बचपन छुपा था। शहर का वो छोटा सा फ्लैट सब कुछ नया लगता था, मगर दिल पुराने जख्मों से भरे हुए थे। एहसन सुबह सवेरे अस्पताल चला
جاتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا۔ غلام حسین کھڑکی سے باہر ٹریفک کو دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ جو زندگی کبھی کھیتوں میں ہنستی کھیلتی تھی وہ اب سیمنٹ کی دیواروں میں قید ہو گئی ہے۔ شہر کی صبح گاؤں کی صبح سے بالکل مختلف تھی، نہ مرغے کی بانگ، نہ کھیتوں کی خوشبو، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ جو دن کی شروعات کو خوشگوار بنا دیا کرتی تھی۔ یہاں سب کچھ تیز، بے رحم اور بے حس تھا، جیسے انسانوں کے چہرے اب صرف موبائل کی روشنی سے جگمگا رہے ہوں۔ اب احسن اپنی نوکری میں الجھا رہتا، اسپتال کے مریض، رپورٹس اور دعاؤں کی دنیا میں کھو گیا تھا۔ وہ سمجھنے لگا کہ اب خاندان کے لیے کافی ہے، ان کے لیے وقت نکالنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر کہتا، آپ لوگ آرام کریں، شام کو کچھ پھل لے آؤں گا، مگر شام آتی تو وہ خالی ہاتھ تھکا ہوا واپس آ جاتا۔ ایک شام غلام حسین نے بیوی سے کہا، چلو زرینہ چھت پر چلیں، شہر کی شام دیکھو، شاید دل بہل جائے۔ بیوی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جہاں کی شام میں سکون نہیں ہے، بس شور ہے۔ گاؤں کی شاموں میں جب اذان اور تلاوت کی آوازیں فضا میں گھل جایا کرتی تھیں، جہاں اب صرف گاڑیوں کے ہارن ہیں، کچھ ہی دنوں میں اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ غلام حسین نے احسن سے کہا، بیٹا تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا لو۔ احسن نے لاپرواہی سے کہا، ابا میں خود اسپتال میں ہوں، دعا بھی لے آیا ہوں، بس وقت پر دے دیا کریں۔ غلام حسین کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ جس بیٹے کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا، وہ بیٹا اپنی ماں کے آنسو تک نہیں سمجھ پا رہا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، چھت سے پانی ٹپکنے لگا۔ زرینہ کی کھانسی اور بارش کی بوندوں کی ٹپ ٹپ نے کمرے کو ایک دردناک گیت میں بدل دیا تھا۔ غلام حسین اپنی بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا اور آہستہ آہستہ دعائیں پڑھتا رہا۔ صبح ہوتے ہی زرینہ کی سانسیں ڈگمگانے لگیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا، کچھ نہیں ہوگا۔ بیوی نے کہا، دعا کرو، اللہ سب بہتر کرے گا، مگر شاید اللہ کو کچھ اور ہی غلام تھا۔ صبح جب سورج نکلا تو غلام حسین کی وہ بیوی جس نے اس کے ساتھ زندگی کی تیز دھوپ اور اندھیری راتیں گزاری تھیں، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو شاید گاؤں کے پرانے کمرے میں جھولے کے پاس بچپن کی نیند میں آتا تھا۔ غلام حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ خاموشی سے شہر کی اس بھیڑ میں اکیلا بیٹھ گیا۔ اب بارش کی بوندیں زمین پر نہیں بلکہ اس کے دل پر گر رہی تھی۔ احسن دوپہر تک آیا، ماں کی لاش دیکھ کر کچھ دیر تک چپ چاپ کھڑا رہا، پھر رسمی آنسو بہائے اور تدفین کے انتظام میں لگ گیا۔ ابو آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ دفنانے کا عمل خاموشی سے ہوا، کوئی قریبی رشتہ دار ساتھ نہ تھا، بس چند محلے والے اور غلام حسین کی ادھوری دعائیں۔ قبر پر مٹی ڈالتے وقت اس نے سر جھکا لی اور بس اتنا کہا، اب تمہیں اس دنیا کے شور و ہنگامے سے نجات مل گئی۔ تدفین کے بعد غلام حسین کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا۔ اسے بیوی کی کئی بات یاد آ رہی تھی۔ یہ خواب ہمیں لے ڈوبیں گے، ہے نا؟ ہاں، وہ صحیح کہتی تھی۔ پھر وہ بالکل خاموش ہو گیا، جیسے اس کے اندر بولنے کی طاقت ہی ختم ہو گئی ہو۔ اب وہ نہ کسی سے بحث کرتا تھا، نہ کسی چیز کی خواہش رکھتا تھا، بس ہر صبح قرآن کی تلاوت کرتا اور سارا دن بیوی کی پرانی چادر سینے سے لگائے کسی کونے میں خاموش بیٹھا رہتا۔ ایک دن احسن نے کہا، ابو کیا آپ اب گاؤں واپس جانا چاہیں گے؟ غلام حسین نے ایک نظر بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا، اب وہاں کیا ہے؟ تم نے تو سب کچھ بیچ ڈالا، اب تو شاید میری ہڈیاں بھی یہیں شہر کی مٹی میں دفن ہوں گی۔ احسن کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے شرمندگی کا رنگ آیا، لیکن پھر وہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ شہر کی زندگی نے غلام حسین کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ گاؤں کی کھلی ہوا، مٹی کی خوشبو، نیم کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں، یہ سب اب صرف خواب بن کر رہ گئے تھے۔ اب تو بس بند کھڑکیاں، گھٹنوں کا درد اور نیند سے خالی راتیں باقی تھیں۔ وہ ہر رات بستر پر لیٹے اپنی بیوی کی تصویر کو دیکھتا اور دھیرے سے کہتا، میں نے خوابوں کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیا، مگر یہ نہ جانا کہ خواب بھی کبھی دل میں دفن ہو سکتے ہیں۔ اب وہ زندگی کے ایسے موڑ پر تھا جہاں نہ کوئی خواہش باقی تھی، نہ کوئی امید، بس خاموشی تھی۔ بیٹے کے رویے کے سرد مہری کمرے میں گونجتے سناٹے کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ کھڑکی کے باہر کی روشنی بھی اندھیرے جیسی لگتی اور وقت صرف دیوار کی گھڑی میں چلتا تھا، دل میں نہیں۔ غلام حسین سارا دن چپ چاپ بیٹھا رہتا اور احسن صبح اسپتال، شام کو اپنے موبائل میں کھو جاتا۔ باپ بیٹے کے درمیان نہ کوئی جھگڑا تھا، نہ اپنائیت، بس ایک ٹھنڈی سی دوری تھی۔ انہی دنوں اسپتال میں احسن کی ملاقات ڈاکٹر عائشہ سے ہوئی۔ وہ عمر میں احسن سے کچھ بڑی تھی، لیکن شخصیت میں مضبوط، خود مختار اور پر اثر۔ عائشہ ایک باوقار اور معزز خاتون زہرا بیگم کی بیٹی تھی اور اپنے مزاج میں خود مختار اور صاف گو۔
एहसन जो ज़िंदगी में बार बार टूट चुका था, आयशा की संजीदगी और मजबूत किरदार से मुतासर हुआ। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती होने लगी। आयशा को भी एहसन की संजीदगी, खामोशी और शराफत पसंद आई। एक दिन उसने एहसन से कहा, मेरी माँ चाहती हैं कि मेरी शादी किसी अमीर बिजनेसमैन से हो, मगर मेरा दिल कहता है कि तुम जैसे सच्चे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना बेहतर होगा। एहसन कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मेरे पास ना दौलत है ना कोई ऊंचा मकाम, बस एक बूढ़ा बाप है जो अब बीमार रहता है, और मैं खुद भी एक अधूरा ख्वाब हूँ जो टूट कर बिखर गया है। डॉक्टर आयशा मुस्कुरा कर बोली, तो फिर हमारा मेल ही अच्छा है। मैं मजबूत हूँ और तुम सच्ची हो। मेरे घर की दीवारें तो हैं, लेकिन रिश्तों की बुनियाद कभी नहीं थी। कुछ ही दिनों में आयशा ने अपने वालिदैन को राजी किया और रिश्ता भेज दिया। गुलाम हुसैन ने पहले एहसन की बात खामोशी से सुनी, फिर कुछ देर बाद कहा, बेटा अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बना सकती है तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। गुलाम हुसैन को उम्मीद हुई कि शायद अब एहसन को एक अपना घर मिले और वो खुद भी इस तंग फ्लैट से निकलकर किसी बेहतर जगह जा सके। शादी सादगी से हुई, मगर आयशा के घराने की शान शौकत, फैशन, कीमती कपड़े, घमंडी नजरें गुलाम हुसैन को अंदर से छोटा और बेहसीयत महसूस करवा गई। शादी के बाद जब गुलाम हुसैन दुल्हन को रुखसत होता देख रहा था तो उसके दिल में एक अजीब सा ख्याल था, जैसे इस शादी में कोई जज्बा, कोई अपनाईद कमी का शिकार थी। शादी को कुछ दिन बाद ही एहसन और आयशा ने गुलाम हुसैन को अपने साथ शहर के एक महंगे इलाके में ले जाकर रखा। उसके लिए एक अलग छोटा सा कमरा रखा गया जो मेन गेट के करीब था। शुरू में आयशा का रवैया रस्मी था, लेकिन जल्दी उसमें सख्ती और लापरवाही झलकने लगी। एक दिन जब गुलाम हुसैन सुबह चाय के लिए किचन के पास गया तो आयशा ने झिंझला कर कहा, अगर चाय चाहिए तो खुद बना ले, मैं यहाँ नौकरानी नहीं हूँ। गुलाम हुसैन ने एक लम्हे के लिए उसे देखा और आहिस्ता से कहा, बेटी मैं तो सिर्फ पानी लेने आया था। आयशा ने तनज करते हुए कहा, तो फिर बर्तन क्यों छेड़ते हैं, इस घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। इतने में एहसन बाहर आया तो आयशा ने बात बदल दी, मगर गुलाम हुसैन का दिल पहली बार खामोशी से जख्मी हो चुका था। कुछ दिन बाद रात के खाने के बाद आयशा ने गुलाम हुसैन के इस्तेमाल शुदा बर्तन उसके हाथ में थमा दिए और कहा, ये दो दीजिए, बाहर की नौकरानी सुबह आएगी तो नाराज़ हो जाएगी। गुलाम हुसैन ने हैरत से देखा, मगर फिर चुपचाप बाहर जाकर बर्तन धोने लगा। सर्द रात थी, हवा भी ठंडी थी। वो बर्तन धोता रहा, उसके कपड़े भीग गए और हाथ कांपने लगे, लेकिन दिल की सर्दी जिस्म की सर्दी से कहीं ज़्यादा थी। जब वो हाथ साफ करके कमरे की तरफ लौटा तो एक प्लेट हाथ से गिर कर टूट गई। आयशा भागती हुई आई और बोली, ये प्लेट मेरे डिनर सेट की थी, बहुत महंगी थी, तुम लोगों को कीमती चीज़ों की कोई कदर नहीं। गुलाम हुसैन खामोश रहा, मगर एहसन झंझला कर बोला, अबू आपसे कहा था ना बर्तन संभाल कर रखा करें, आप हर चीज़ खराब कर देते हैं। गुलाम हुसैन ने पहली बार कुछ नहीं कहा, ना वजाहत दी, बस खामोशी से अपने बिस्तर पर जा बैठा, सर झुकाए जैसे अपने अंदर कुछ दफन कर रहा हो। रात गए तक वो जागता रहा, बीवी की पुरानी चादर को आंखों से लगाकर पहली बार बेटे की आवाज़ में अपने लिए दूरी महसूस की। मैंने सब कुछ तुम्हें दिया बेटा, खुद से ज़्यादा चाहा, लेकिन आज तुम्हारे घर में ही एक अजनबी हूँ। एहसन जो कभी अपनी माँ के सामने नरम दिल था, अब आयशा के असर में आकर सख्त होता जा रहा था। मोहब्बत अब बोझ बन गई थी। वो दिल से बाप का एहतराम करता था, मगर ज़ुबान कुछ और कहने लगी थी। घर वही था, दीवारें वही थी, दरवाजे भी वही थे, मगर गुलाम हुसैन के लिए अब हर दरवाज़ा बंद हो चुका था, सिवाय इस कमरे के जिसे आयशा ने बाबा का कमरा कहकर बाकी घर से अलग कर दिया था। एक वक्त था जब गुलाम हुसैन की मौजूदगी घर में बरकत समझी जाती थी, मगर अब वही वजूद एक नाखास्ता बोझ बन गया था। एहसन सुबह सवेरे काम पर निकल जाता और आयशा अब खोलकर अपना असली रवैया दिखाने लगी थी। वो ना किसी ध्यान, लिहाज या बर्दाश्त को मानती थी। गुलाम हुसैन की खामोशी को उसने इसकी कमज़ोरी समझ लिया था और रोज़ इसी कमज़ोरी का कोई ना कोई नया फ़ायदा उठाती थी। एक दिन आयशा ने घर में नई अलमारी लगवाने का फैसला किया। कारीगर आए तो पूरा घर का सामान इधर उधर होने लगा। गुलाम हुसैन का पुराना बिस्तर, चंद किताबें, उसकी बीवी की यादों से भरा एक छोटा सा संदूक भी कमरे से बाहर निकाल दिया। गुलाम हुसैन सेन में बैठा खामोशी से ये सब देख रहा था। कारीगर वो संदूक घसीट रहे थे जिसमें उसकी बीवी के लिखे खतूत, शादी की तस्वीर और एहसन के बचपन की यादें महफूज थीं। बेटा वो संदूक ज़रा आराम से रखना, गुलाम हुसैन ने कहा, लेकिन आयशा तेज़ी से आगे बढ़ी और बोली, अंकल ये सब पुराना बेकार सामान है, अगर इतना ही अजीज़ है तो उसे अपने कमरे में रखिए, मगर मेरे ड्राइंग रूम में ये बदबूदार चीज़ें नहीं चलेंगी। गुलाम हुसैन ने चुपचाप वो संदूक अपने कमरे में घसीटा और कोने में रख दिया। वो खामोश रहा, मगर अंदर एक चुभन थी, जैसे किसी ने यादों को मिट्टी में मिला दिया हो। अगले दिन का दुख कुछ और था। आयशा ने एक महंगी नस्ल का पालतू कुत्ता खरीद लिया जिसे वो अपने बच्चे की तरह मानती थी। ये हमारे घर का नया मेंबर है, आयशा ने फख्र से कहा। वो कुत्ता पूरे घर में आज़ादाना घूमता, लेकिन जैसे ही गुलाम हुसैन के कमरे के करीब आता भौंकने लगता। आयशा तंज उड़ाते हुए कहती, अंकल मेरा डॉगी आपको देखकर डर जाता है,
शायद आपकी शक्ल से उसे कोई पुरानी लड़ाई याद आ जाती है। एक दिन जब गुलाम हुसैन गुस्ल के लिए जा रहा था तो वही कुत्ता उसके पैरों में उलझ गया। गुलाम हुसैन लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ से खून निकला है। आयशा दौड़ती हुई आई और मगर गुलाम हुसैन के पास नहीं, सीधी कुत्ते के पास जाकर बोली, मेरे बच्चे तुम्हें चोट तो नहीं आई? फिर वो गुलाम हुसैन की तरफ मुड़ी और कहा, अंकल आप देख कर नहीं चल सकते? अगर मेरे कुत्ते को कुछ हो जाता तो? गुलाम हुसैन ने जख्मी हाथ देखा, फिर कुत्ते को और फिर आयशा को। बेटी मैं खुद गिरा था, उसने कहा। आयशा ने सख्त लहजे में कहा, गिरना तो आपकी आदत बन चुकी है, मगर अगर दोबारा मेरी डोगी को कुछ हुआ तो बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो रात गुलाम हुसैन ने दर्द में गुजारी। दिल चाहा बेटे एहसन से कुछ कहे, मगर फौरन दिल ने रोका। जैसे आंखें बंद करते वक्त माँ की मौत की खबर दी गई हो। वो दिल की हालत क्या समझेगा। कुछ दिन बाद गुलाम हुसैन की पुरानी चारपाई टूट गई। कमर का दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। उसने आयशा से कहा, बेटी अगर नई चारपाई ना दिलवा सको तो पुराना गद्दा ही बदलवा दो, बहुत तकलीफ है कमर में। आयशा ने आंखें सुकेड़ते हुए कहा, अंकल ये कोई फलाही इदारा नहीं है, अगर यहाँ की सहूलतें पसंद नहीं तो ओल्ड होम चले जाइए, वहाँ आप जैसे ही लोग रहते हैं। ये बात गुलाम हुसैन के दिल पर बिजली बनकर गिरी। उस रात गुलाम हुसैन ने पुराने संदूक से अपनी बीवी का दुपट्टा निकाला, चेहरे पर रखा और रोते हुए कहा, अगर तुम होती तो ये सब ना होने देती, अगर तुम होती तो मेरा बेटा मुझे यूं बेबस ना देखता। अब आयशा का जुल्म एक नया रूप ले चुका था। वो जानबूझकर गुलाम हुसैन को खाना वक्त पर देना भूल जाती। कभी कहती, अरे अंकल के लिए खाना रखना ही भूल गई। कभी कहती, उन्होंने तो अभी नाश्ता किया है ना। या फिर कहती, रात की बची सड़ी सब्जी दे दो अब्बू को, इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। वो अक्सर गुलाम हुसैन के सादा लिबास पर भी तंज करती, खुदा के लिए अंकल को कमरे से बाहर ना आने दे। अब गुलाम हुसैन साहब को खाने के वक्त घर के बाहर दरवाजे के पास प्लेट पकड़ा दी जाती। कभी बासी रोटी, कभी बचा खचा सालन। वो सब खामोशी से खा लेते, जैसे ज़िंदगी के इस जिल्लत अमेज़ हालत को अपनी तकदीर मान चुके हों। एक दिन गुलाम हुसैन साहब ने संदूक से बीवी की लिखी हुई एक दुआ निकाली, या अल्लाह जिस बेटे के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अगर उसके घर में जगह ना मिली तो अपने घर बुला ले। तेरी ज़मीन में कमी नहीं है। जाड़े की एक सुनसान सुबह थी, जब सूरज की किरणें भी खिड़कियों में झांकने से डर रही थी। गुलाम हुसैन साहब नींद और दूरी छोड़कर उठ गए। ना जिस्म में हरारत थी, ना दिल में उम्मीद। बिस्तर पर रखा कंबल बार बार खिसक रहा था, जैसे अब वो भी इस बूढ़े से तंग आ चुका हो। ठंडी हवा दरवाजे के दराड़ों से अंदर आ रही थी, लेकिन उनके अंदर की सर्दी इस मौसम से कहीं ज़्यादा जालिम थी। अब आयशा रोज़ सुबह दरवाज़ा खटखटाकर कहती, अंकल चाय बनानी है तो बर्तन धो कर आइए। एक ज़माना था जब गुलाम हुसैन दिन भर खेतों में मशक्क़त करते और शाम को चूल्हे के पास बैठते तो बीवी खामोशी से चाय बना लाती और दोनों साथ बैठ कर पीते। अब वो सब यादें माजी का साया बन गई थी। आज भी वो बर्तन उठाकर बाहर गए। पानी बर्फ़ की तरह ठंडा था, हाथ कांप रहे थे। झुक कर नल खोला तो कपड़ों तक में ठंड आ गई। याक हवा ने कमर में चोट की तरह असर किया। हाथों से जाग नहीं बन रहा था, उंगलियां सुन हो रही थी, लेकिन वो खामोशी से बर्तन धोते रहे जैसे उनका फ़र्ज हो। वापसी पर आयशा की कीमती प्लेट हल्की सी ठोकर से ज़मीन पर गिर कर टूट गई और जैसे घर में तूफान आ गया। आयशा तेज़ी से बाहर आई, आवाज़ बुलंद थी, ये क्या किया आपने? ये प्लेट मेरे ब्रांडेड डिनर सेट की थी, अम्मी ने तोहफे में दी थी। आपको पता भी है कितनी महंगी थी? गुलाम हुसैन ने नज़रें झुकाकर बस इतना कहा, बेटे गलती हो गई, हाथ सुन हो गए थे। आयशा ने हाथ नचाते हुए जवाब दिया, गलती हमेशा आपसे ही क्यों होती है? अब बस बहुत हो गया, चीज़ों को संभाल कर रखा करें। इस दौरान एहसन कमरे से निकला। आंखें अब भी नींद से बारी थी, लेकिन बीवी की आवाज़ ने जगा दिया था। क्या हुआ? आयशा ने बताया, आपके अब्बा ने मेरी प्लेट तोड़ दी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इन्हें बर्तनों से दूर रखें। एहसन ने पलटकर वालिद को देखा। अब्बा जी प्लीज़ आप सब काम छोड़ दें, अगर जिस्म साथ नहीं देता तो कुछ ना छुआ करें, मुझे हर बार शर्मिंदा होना पड़ता है। गुलाम हुसैन ने कुछ न कहा, बस अपनी नम आंखें झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ लौट गए। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद किया और खुद को दीवार से लगाकर नीचे बैठ गए। आंखों से आंसू बहने लगे, वो आंसू जो बरसों की कुर्बानियों का सिला न बन सके, वो दर्द जो लफ्ज़ों में डाल ना सका। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया बेटा, वो आहिस्ता से बड़बड़ाए। ज़मीन बेची, घर छोड़ा, बीवी खो दी, लेकिन आज ये सुनना पड़ रहा है कि मेरे हाथ कांपते हैं। उनकी सिसकियाँ आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती हैं, लेकिन उस घर की दीवारें अब इन सिसकियों की गवाह न रहीं। वो खामोशी से बीवी की पुरानी चादर को सीने से लगाकर लेट गए, जैसे माँ की गोद ढूंढ रहे हों। अगले दिन जब एहसन शाम को घर आया तो आयशा ने शिकायतों की फहरिस्त फिर से दोहरा दी। मैं अंकल से कहती हूँ अपने कपड़े अलग रखें, लेकिन वो सारा कमरा गंदा कर देते हैं।
अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए तो क्या होगा? एहसन ने सारा लाया, मैं समझाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। रात के खाने के बाद एहसन गुलाम हुसैन के कमरे में आया और कहा, अब्बा जी, आयशा जो कहती हैं वो गलत नहीं है, आप अपना ख्याल नहीं रखते, प्लीज़ ज़रा सा नज़्म ज़ब्त रखें, ये शहर है गाँव नहीं। गुलाम हुसैन साहब ने मुस्कुराकर बेटे एहसन की तरफ देखा। वो मुस्कुराहट जिसमें दर्द छुपा हुआ था, और कहा, बेटा मैं तो अब सिर्फ वक्त का मुसाफिर हूँ, तुम्हारे साथ हूँ लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं। अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें बोझ लगती है तो कह देना, मैं कहीं और चला जाऊँगा। एहसन को गहरी शर्मिंदगी हुई, लेकिन उसी वक्त आयशा की आवाज़ आई, अंकल किचन की लाइट बंद कर दीजिए, शायद फिर ना आ पाएँ। शर्म, मोहब्बत और थकन तीनों ने एहसन को खामोश करवा दिया। गुलाम हुसैन साहब के लिए अब हर दिन एक जैसा हो गया था। सुबह सेन में धूप में बैठना, शाम को कोने में साया तले, और रात को बीबी की यादों के साथ सोना। कभी कभी वो दुआ करते, या अल्लाह, अगर इस दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं रही तो अपनी मिट्टी में थोड़ी सी जगह दे देना। एक दिन एहसन का एक दोस्त घर आया। रात के खाने पर आयशा ने खास एहतमाम किया, लेकिन गुलाम हुसैन साहब का जिक्र तक ना किया। जब वो दोस्त किचन की तरफ गया और सेहन में बैठे गुलाम हुसैन साहब को देखा तो हैरान हुआ, ये बुजुर्ग कौन है? आयशा ने कहा, ओह, ये मेरे ससुर हैं, यही रहती हैं, बस बहुत सादा हैं। गुलाम हुसैन साहब ने दिल ही दिल में कहा, हाँ, सादा ही हूँ, क्योंकि सादगी वो चीज़ है जो किसी को इज्जत देती है और किसी से छीन भी लेती है। इस रात गुलाम हुसैन साहब बहुत रोए। वो रोना जिसमें सिर्फ गम नहीं बल्कि मुकम्मल शिकस्त थी। मैंने रिश्तों को कीमती समझा, इसलिए सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन आज रिश्तों की कीमत रुपये में तोली जाती है। अब सुबह की हवा ताजगी नहीं देती, वो कभी गाँव के खेतों में महसूस होती थी। दरख्तों का साया, बीवी की आवाज़ और कच्ची मिट्टी की खुशबू अब शहर की सुबहों में सिर्फ सन्नाटा और बेरुखी रह गई थी। गुलाम हुसैन साहब इस घर में किसी बुजुर्ग की तरह नहीं बल्कि एक बोझ की तरह रहने लगे थे। ऐसा बोझ जिसे कोई गले लगा सकता और ना दिल में जगह दे सकता था। वो कमरे के कोने में बैठे रहते, कभी दरवाजे के पास, कभी सेहन के बेंच पर, जहाँ आयशा ने उनके लिए एक मुस्तकिल जगह तय कर दी थी। वो हंसते हुए मेहमानों से कहती, ये अंकल का कोना है, हमने इन्हें बाहर की हवा के लिए यहाँ बिठाया है। लेकिन गुलाम हुसैन साहब जानते थे ये दरअसल उनके खाने का कोना है, वो कोना जहाँ अब सिर्फ बासी रोटी, बची हुई सब्जी, ठंडा पानी मिलता है। एक दिन दोपहर को जब आयशा ने बचा हुआ खाना उनके सामने रख दिया तो वो बस खामोशी से प्लेट को देखते रहे। सब्जी पर तेल जमा हुआ था और रोटी सख्त हो चुकी थी, जैसे वक्त की सख्ती ने उसे पत्थर बना दिया। अंकल, भूखे रहने से तो बेहतर है, आयशा ने तंजिया लहजे में कहा। गुलाम हुसैन साहब ने आस्था से प्लेट उठाई और दरवाजे के पास बैठकर खाने लगे। वो लुक़्मे जो कभी बीवी मोहब्बत से बनाकर देती थी, अब जुबान पर चालू जैसे लगते थे। उस वक्त एहसन घर पर नहीं था, अस्पताल में ड्यूटी पर था। शाम को लौटा तो आयशा ने हंसते हुए कहा, आपके अब्बा जी ने आज भी सेहन में खाना खाया, शायद इन्हें ड्राइंग रूम की हवा रास नहीं आती। एहसन ने बस मुस्कुराकर सर हिला दिया। अब वो हर बात में बीवी की हाँ में हाँ मिलाने लगा था, चाहे बात कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। कुछ दिन बाद सर्दी की शिद्दत और बढ़ गई। गुलाम हुसैन साहब की तबीयत बहुत जल्द सी हो गई। जब ठंड ने गले में दर्द और माथे पर हल्का बुखार डाल दिया तो उन्होंने खुद से कहा, शायद मौसम का असर है, और चुपचाप अपने कमरे में लेट गए। अगले दिन वो हल्के बुखार के साथ उठे और खांसी शुरू हो गई। कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला, आहिस्ता आहिस्ता सेन की तरफ बढ़े। आयशा ने दूर ही से कहा, अंकल, आप बुखार में बाहर क्यों आ गए? आपका कमरा ही बेहतर है, मैं दुआ बुझवा दूंगी। मगर ना दुआ आई और ना ही कोई खबर। वो सारा दिन बुखार में अकेले पड़े रहे, कोई देखने तक ना आया और ना ही किसी ने तसल्ली के दो अल्फाज कहे। रात को बुखार बढ़ गया। गुलाम हुसैन साहब का जिस्म कांपने लगा। वो एक पुराना कंबल ओढ़े छत की तरफ देख रहे थे। उनकी जुबान से एक लफ्ज़ निकला, ज़ोहरा, अगर तुम होती तो तेरा हाथ चाहिए था। उसी वक्त दरवाजे पर खड़ा चौकीदार, जो दूर से सब कुछ देख रहा था, आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया और बोला, बाबा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। चौकीदार ने कहा, आइए बाबा जी, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। गुलाम हुसैन साहब ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, नहीं बेटा, बस कोई दवा दे दो, बहुत तकना है। चौकीदार फौरन बाजार गया, कुछ गोलियां, बुखार की दवा और गर्म दूध ले आया। उसने अपने हाथों से गुलाम हुसैन साहब को दवा दी, कंबल दुरुस्त किया और बोला, बाबा जी, आप मेरे वालिद जैसे हैं, ऐसी हालत में अकेले मत रहा करें। गुलाम हुसैन साहब की आंखों से आंसू बह निकले। ये एक अजनबी था, मगर उसके दिल में इंसानियत जिंदा थी। अगले दिन जब आयशा को पता चला कि चौकीदार दवा देने आया था तो वो गुस्से से भर गई। बोली, किसकी इजाज़त से तुम अंदर आए? कौन हो तुम? मेरे ससुर को तुम दवा दोगे? तुम्हें कोई अदब अदाब नहीं आता? खबरदार, अगर दोबारा इनके करीब आए तो नौकरी से निकाल दोगी।
चौकीदार खामोशी से सर झुकाए खड़ा रहा। दरवाजे के पीछे खड़े गुलाम हुसैन साहब सब कुछ सुन रहे थे। वो ना चिल्लाए ना कुछ बोले, बस अंदर से मजीद टूट गई। एक वक्त था जब उनकी बीवी मामूली तकलीफ पर पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था। आज वो बुखार में पड़े हैं और बेटे का घर उनका दरवाज़ा तक बंद कर रहा है। जब एहसन घर आया तो साहब ने उस बात को मामूली बनाकर टाल दिया। चौकीदार हाथ से बढ़ रहा है, याद रखो वो बस एक मुलाजिम है। एहसन ने सारे लाया और बात बदल दी, अपने बाप के बुखार तक का जिक्र ना किया। उस रात गुलाम हुसैन साहब ने खिड़की खोलकर चांद को देखा। यही चांद तो जोहरा को पसंद था, गांव की छत पर बैठकर देखती थी। मगर हालात कितने बदल गए। उन्होंने एक पुराना रुमाल निकाला जिस पर जोहरा ने पीले हल्दी के रंग से या अल्लाह लिखा था। वो रुमाल आज भी इसकी ममता की खुशबू लिए हुए था। गुलाम हुसैन साहब ने उसे आंखों से लगाया और धीरे से कहा, अब कोई दुआ नहीं चाहिए, अब तो बस तेरा लम्स याद आता है, जो ना किसी दुआ ना किसी वजीफे से मिल सकता है। वक्त का काम तो गुजर जाना है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं भरते, बल्कि हर लम्हा उनमें नमक छिड़क जाता है। 5 साल बीत गए मगर गुलाम हुसैन साहब के दिल की हालत वही रही। अब वो बहुत कम बोलते थे, अक्सर किसी कोने में बैठे रहते या कुरान की तिलावत करते रहते। उनकी दुनिया बदल गई थी, मगर दिल वहीं अटका था जहां उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया था, अपने बेटे की खुशियों और ख्वाबों के लिए। इन्हीं सालों में एहसन और आयशा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। घर में खुशी और कह कहे गूंजे, लेकिन इस हंसी में उस बूढ़े बाप के लिए कोई जगह नहीं थी। बच्चे के पैदा होने वाले दिनों गुलाम हुसैन साहब दरवाजे के पास बैठे रहे। ना किसी ने इन्हें खुशखबरी दी, ना मिठाई दी, ना मुबारकबाद। जब अस्पताल से वापसी हुई तो गुलाम हुसैन साहब दूर से झांकते रहे कि शायद कोई इन्हें बच्चा दिखा दे, मगर आयशा ने बच्चे को छुपा लिया। उसने कहा, ये देहाती लोग हैं, ज़रा बात फैलाते हैं, बच्चे के पास नहीं जाने देना। एहसन ने उदासी से सहारा लाया। शायद अंदर से कुछ महसूस हुआ मगर जुबान बंद रही। बीवी की मर्जी उसकी आंखों का हुक्म बन चुकी थी। गुलाम हुसैन साहब ने कभी बच्चे को गोद में लेने की जिद ना की, ना छूने की कोशिश की। बस रात को दुआ करते, या अल्लाह वो चेहरा जो दुनिया मुझे नहीं दिखा रही तो मुझे ख्वाब में दिखा दे, ताकि जान सकूं कि मेरी नस्ल कैसी दिखती है। वक्त गुजर गया। गुलाम हुसैन साहब अब इतने कमज़ोर हो गए कि चलते वक्त दीवार का सहारा लेना पड़ता। कमर झुक गई थी, कदम डगमगा गए थे, लेकिन दिल में बस एक ही दुआ बाकी थी, या अल्लाह जब भी मेरा वक्त आए मुझे तेरी याद और तेरी तिलावत में ही अपने पास बुला लेना। एक दिन घर में दावत का एहतमाम हुआ। पूरा खानदान आने वाला था। सब लोग तैयारियों और सजावट में मसरूफ़ थे। आयशा ने सुबह से इंतज़ाम शुरू कर दिया, मगर सबसे पहले गुलाम हुसैन साहब को छत वाले कमरे में भेज दिया। अंकल, आज आप ऊपर ही रहेंगे, नीचे मेहमान आ रहे हैं, अगर कोई अजनबी बुजुर्ग दुख गया तो लोग क्या सोचेंगे। गुलाम हुसैन साहब खामोशी से कुरान हाथ में लेकर ऊपर की तरफ बढ़ गए। कदम कांप रहे थे मगर जुबान पर कोई शिकायत ना थी। बस दिल कह रहा था, ये मेरे बेटे का घर है, मगर इसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं। ऊपर छोटे से कमरे में पहुंचकर उन्होंने चटाई बिछाई और बैठ गए। नीचे से रिश्तेदारों की हंसी बातों और पकवानों की खुशबू आ रही थी। सब कुछ जैसे ज़िंदगी का जश्न हो, लेकिन गुलाम हुसैन साहब की ज़िंदगी अब सिर्फ वीरानी में सिमट गई थी। दोपहर के बाद दुआ के वक्त उन्होंने अपने छोटे से कोने में दिया जलाया, हाथ जोड़कर सुकून से बैठ गए और आंखें मूंद ली। ये मंजर कुछ यूँ था जैसे कायनात भी खामोश और दुआ में डूबी हुई हो। शायद कोई अपने दिल के जख्मों का इलाज ढूंढ रहा था या कोई अपनी आखिरी इबादत में मसरूफ़ था। आयशा और एहसन मेहमानों की खातिरदारी में मसरूफ़ थे। किसी को ये होश तक न था कि उनका बूढ़ा बाप ऊपर छत पर तन्हा बैठा है। अगले दिन जब सूरज निकला तो वो आम दिनों की तरह रोशनी नहीं लाया। घर में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई कीमती दुआ बुझ गई हो, जैसे कोई अनमोल शय खो गई हो। एहसन की आंख खुली तो सर में बोझ सा महसूस हुआ। रात गए तक मेहमानदारी कह कहे तारीफों की गूंज दिमाग में चल रही थी। आयशा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, मगर दोनों में से किसी ने भी ऊपर छत पर मौजूद अपने वालिद की खबर लेने की जहमत ना की। नौकर ने हिचकिचाते हुए पूछा, साहब कहाँ हैं? आयशा ने लापरवाही से कहा, वहीं होंगे, भूख लगेगी तो खुद नीचे आ जाएंगे। मगर कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला। दोपहर होने को आई, सूरज की तेज़ रोशनी छत पर फैल गई तो अचानक एहसन को ख्याल आया, अब्बा कहाँ हैं? कल से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। वो घबराकर सीढ़ियाँ चढ़ा और छत के कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर हल्की सी रोशनी जल रही थी। गुलाम हुसैन दुआ की चटाई पर झुके हुए बिल्कुल खामोश बैठे थे। अब्बा, एहसन ने ऐसा से पुकारा, मगर कोई जवाब ना आया। उसने आगे बढ़कर कंधे को लाया तो जिस्म बेजान सा लगने लगा। गुलाम हुसैन इस दुनिया की तज़लील, तन्हाई और बेरुखी से आज़ाद हो चुके थे। वो इसी चटाई पर थे जहाँ बरसों से इबादत करते आए थे।
اب वही चटाई उनकी आखिरी मुस्कुराहट बन गई थी। एहसन के सामने अंधेरा छा गया, दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गई। वो ज़मीन पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। आयशा भी ऊपर आई, उसके चेहरे पर रंज नहीं, बस हल्की सी हैरत थी। उसने सर्द लहजे में कहा, अल्लाह उनकी मगफरत करे। अच्छा हुआ सुकून से चले गए। फिर सीढ़ियाँ उतरते हुए बड़बड़ाई, आखिरकार एक बोझ कम हुआ। एहसन खामोश रहा, सर झुकाकर नीचे उतर आया। गुलाम हुसैन के जनाजे और कफन दफन की जिम्मेदारी मोहल्ले वालों और चौकीदार ने निभाई। ना किसी की आंख नम हुई, ना कोई दुआ दिल से निकली। तदफीन सादा थी, मगर आसमान पर उनके अमाल लिखे जा चुके थे। इसीलिए मैं घर में एक और कहानी शुरू हुई। वही बच्चा जो रात तक माँ की गोद में खेल रहा था, अचानक पेट पकड़कर चीखने लगा, अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। आयशा घबरा गई, एहसन के हाथ मुंह फूल गए। बेटे को क्या हुआ? बच्चा तड़प रहा था। वो दोनों उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने मुआयना किया, चेहरा संजीदा हो गया और कहा बच्चे को फौरन आईसीयू में ले जाना होगा, अपेंडिक्स फट चुका है, हालत नाजुक है। एहसन और आयशा सकते में खड़े रह गए। कल तक जो बच्चा हंसता खेलता था, आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। चंद घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया और बोझल आवाज में कहा, हमने पूरी कोशिश की मगर बच्चा बच नहीं सका। एहसन की दुनिया उजड़ गई। आयशा जमीन पर बैठकर चीखने लगी, हमारा बेटा, ये क्या हो गया? एहसन दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे, मगर दिल के अंदर एक अनजान खौफ गूंजने लगा, जैसे कहीं से कोई सदा आ रही हो। वही बाप जिसकी मौत पर उसकी आंख भी नम ना हुई थी, आज इसी के पोते को कंधों पर उठाना पड़ा। कब्रिस्तान में दो कब्रें तैयार थी, एक गुलाम हुसैन की और एक इस मासूम पोते की। दादा और पोता जिन्हें जिंदगी ने कभी करीब ना किया, मौत ने एक साथ मिट्टी तले मिला दिया। एहसन बाप की कब्र के करीब ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, अब्बा मैंने आपसे सब छीन लिया, वक्त, इज्जत, मोहब्बत, बदले में खुदा ने मुझसे मेरा सुकून और मेरा बेटा छीन लिया। जी आपकी बद्दुआ नहीं थी, ये मेरे अपने अमाल की सजा थी। पीछे आयशा खड़ी थी, आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे, मगर चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। दिल के अंदर एक आग थी जो सिर्फ रिश्तों की बेकदरी पर जलती थी, एक ऐसी आग जो अब इसे हर दिन अंदर ही अंदर राख करती रहेगी। कब्रिस्तान की फिजा बोझल थी, सन्नाटा इतना गहरा हवा ने भी सांस लेना छोड़ दिया। दोनों तरफ मिट्टी डाली जा रही थी। एक कब्र उस बुजुर्ग थी जिसने जिंदगी भर कुर्बानियाँ दी, दूसरी उस पोते की जिसकी मासूम हंसी अब कभी ना गूंजेगी। दो नस्लें जो जिंदगी में एक दूसरे को छू भी ना सकी, आज जमीन तले एक साथ सो गई। एहसन कब्र के किनारे बैठा अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर मुसलसल रोता रहा। वही शख्स जो हमेशा खामोश रहा, आज अपनी आवाज़ ही खो बैठा था। उसे लग रहा था जैसे कायनात का हर जर्रा उसे पुकार रहा हो। तूने एक बाप को तन्हा छोड़ दिया, एक पोते को दादा की मोहब्बत से महरूम कर दिया। पास खड़ी आयशा अब बिल्कुल खामोश थी, उसके चेहरे पर वो सख्ती बाकी न रही जो कल तक थी। ये वो वक्त था जब जिंदगी ने आयशा और एहसन दोनों को आईना दिखा दिया था। बेटे की मौत ने आयशा की आंखों की चमक और दिल का सुकून छीन लिया था। अब उसे यकीन हो चुका था कि जिस बुजुर्ग को वो नौकर समझती रही, वो दरअसल खुदा की रहमत थी। इन्हें खो देना उसके लिए सबसे बड़ा अज़ाब था। एहसन ने लरजते हाथों से गुलाम हुसैन की कब्र पर हाथ रखा और धीमे लहजे में कहा, अब्बा काश मैं वक्त रहते समझ पाता, काश कभी आपके सर पर प्यार का हाथ रख पाता, काश अपने लफ्ज़ों से आपको तन्हा ना छोड़ता। आंखों से बहती आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर उसने अपने बेटे की कब्र की तरफ देखा और बेखुद सा बोला, ये मेरी ही गलती थी अब्बा, जिस बेटे के लिए आपकी मोहब्बत ना समझी, उसी को अल्लाह ने मुझसे छीन लिया। कुछ देर बाद सब लोग वहाँ से रुखसत हो गए। बस वो दो कब्रें बाकी रह गईं और उनके दरमियान एक शख्स जो अपने अमाल का हिसाब खुद ले रहा था। साल बीत गए, मगर एहसन का दिल वहीं रुका रहा, उस लम्हे में जब उसने अपने बाप को तन्हा आखिरी सांस लेते छोड़ दिया था। अब वो अक्सर कब्रिस्तान आता, दोनों कब्रों के बीच बैठता, कुरान पढ़ता, आंखें बंद करता और बस एक दुआ मांगता, या अल्लाह जो कमी मुझसे रह गई है उसे मेरे आंसुओं से माफ़ कर देना। वालिदैन की कुर्बानियों को कीमत दुनिया कभी नहीं चुका सकती। जो औलाद अपने वालिदैन को वक्त पर नहीं समझती, उसे ज़िंदगी में कभी हकीकी सुकून नहीं मिलता। अगर वक्त पर रिश्तों की पहचान ना हो तो वही वक्त सब कुछ छीन लेता है। वालिदैन की दुआएं जन्नत हैं, उनकी बेकदरी दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान। रिश्तों की इज्जत करें, क्योंकि आज जो ज़मीन खामोश है, कल हमारे लिए नरम या सख्त बन सकती है। वालिदैन अल्लाह की रहमत है। जो औलाद वक्त पर उनके प्यार और कुर्बानी को नहीं समझती, वो ज़िंदगी का सुकून और खुशी खो देती है। रिश्तों की कदर करें, क्योंकि एक बार गया वक्त और टूटा रिश्ता कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।